Hello traders, I welcome you all on my YouTube channel The Conviction Indicators. So today we are going to test a new strategy in the Nifty futures and as well as options. So this is a pure option buying strategy. मतलब इसमें हम कोई भी option selling से related कोई भी बात नहीं करेंगे. We'll know everything about the strategy from the starting till the beginning. I will tell you the entry, the exits and everything. कैसे indicators को apply करना है. We are going to use two indicators. I have named this strategy as Garud strategy because it is a big strategy and it will give you small stop losses, but जब movement आएगा तो वो बड़े movement से आएगा and it will end up giving you big profits. So let's see, we'll also see the backtest data that I have compiled. Like no other person in the YouTube will give you the backtest data कि backtest data में आपको कितना capital use करना चाहिए. Money management के साथ ये वीडियो होगी, तो please watch till the end. This video may be around 8 to 9 minutes long. We'll see. So firstly हम start करते हैं. Now let's start quickly. So आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खुला है मेरे सामने. This is the trading view. I hope everyone knows that. तो trading view में you go here and you type 1 minute easy scout. Okay, so the first one is Gustavo Rabi. आपके पास ये इंडिकेटर आ जाएगा. You can favorite it and you can add it to the chart. That is all. ये इंडिकेटर एक बार ऐड हो जाएगा, then you will see this kind of line. तो हमें इसमें कुछ modifications करनी है. Okay, I will apply the indicator and मैं साथ साथ modifications भी करता चलूँगा so that you will get to know कि आपको क्या modifications are needed and what modifications can be done. This video is bilingual. इसमें हिंदी and English both speaking जो इनको समझ में आता है हिंदी या English, those who can understand can see this video. So no issues. So यहाँ पे हम बार कलर हटा देंगे and then we will remove the trend average. So this is the line that we are going to keep. ठीक है, इसके साथ हम एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे, that is super trend plus. Sorry, this. So this is the indicator that we have added. So ये super trend plus है, this is the indicator, but यहाँ पे काफ़ी वेग इंडिकेटर है and it will take the moves to the next day also. We are doing pure intraday option buying, so we'll try to give it the maximum that we can. Okay, so हम इसमें आएंगे, इसमें VAWA हम इसको यहाँ पे रखना है and then we'll change it to 7 and then this multiply to 2. 7202. Keep this thing in mind, 7202. Okay, that is all and now click OK. So this is the trend that we have got and हमारे पास ये चीज़ आ गई है. So this is the only setup. Now अब हमें देखना है कि हमें trades कैसे लेनी है. Then I will show you the backtest of the 50 trades that I have done in the whole month of October और कितना उसने profit दिया और अगर हमारे साथ सिनेरियो ख़राब हो जाता है, if we go into worst case scenario, what can it give? So 3rd October को आते हैं. The trade was continuing for the previous day. We are not going to take this trend because the trend was getting continued for the previous day. We are only going to take this trend. Let's say हम यहाँ पे entry लेते हैं. Okay, so I will explain you with every bit by bit. Just stay with me. ठीक है, हम लोग यहाँ पे entry लेते हैं. Okay, so this is green. Both should be green. ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, we enter. ठीक है, वी एंटर. इसके बाद जो मूवमेंट इसने दिया 44 पॉइंट्स की दिया एंड देन वी एग्जिट इन अ माइनर लॉस ऑफ, लेट्स से यहाँ इसकी क्लोजिंग पे भी एग्जिट माइनर लॉस ऑफ 29 टू 24 पॉइंट्स. जब तक हम यहाँ एग्जिट करते हैं इट इज अराउंड 29 टू 24 पॉइंट्स. ठीक है, एंड देन अ सेल ट्रेंड आ जाता है यहाँ पे. जैसे ही सेल ट्रेंड आएगा, जब पहले विल गेट एन एसएल हिट. यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हुआ. लेट्स से नेक्स्ट ट्रेड क्या कहती है, सेल ट्रेंड आता है. बट आर वी गोइंग टू टेक द सेल ट्रेंड हियर? नो, यहाँ पे हम इस सेल ट्रेंड को नहीं लेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू अ सेल ट्रेड हियर. ओके, क्योंकि अभी ये ग्रीन लाइन स्टिल इंटैक्ट. अभी ये ग्रीन लाइन को रेड होना पड़ेगा, देन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ सेल ट्रेड. सो हम सेल ट्रेड कहाँ एंटर करेंगे? दिस कैंडल के क्लोज पे. वंस दिस कैंडल क्लोजेज वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ सेल ट्रेड. सो आई विल क्रिएट द पोजीशन फॉर यू. यहाँ पे मैंने पोजीशन क्रिएट की. ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एज यू कैन सी एंड लेट्स सी कितना हमें प्रॉफिट मिलता है. सो हम पूरा प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कोई टॉप एंड बॉटम कैश नहीं मिल सकता. सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक द फुल प्रॉफिट, बट हाँ, वंस द ट्रेड इज कंटिन्यूड वी विल वेट टिल 325. तो 325 या 315 तक फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग वी विल गोइंग टू वेट टिल हियर. सो हमने वहाँ पे 110 पॉइंट्स कैप्चर किए. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड. सो ऐसे ही मैं और भी दिन का बैकटेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ एंड सम यूनिक डेज भी होंगे. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. सिर्फ यही नहीं है, यूनिक डेज भी हैं कुछ. ऐसे ये डे है. फर्स्टली लेट्स से यहाँ पे बैकटेस्ट आता है. लेट्स से बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, जैसे मार्केट इतना आई वाज आल्सो रिटेलर, सो आई वाज आल्सो डूइंग द सेम सिनेरियो बट द साइकोलॉजी हैज चेंज्ड इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. पहले मैं क्या करता था कि मार्केट इतना गैप अप हुआ है, अच्छा यहाँ से तो ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे गिरेगा. ठीक है, बट नो, इंडिकेटर सेम ऊपर जाएगा, हाई ब्रेक होगा, आई विल एंटर. मतलब मैं नहीं सोचूंगा कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. ये मैं कौन होता हूँ सोचने वाला. द इंडिकेटर इज टेलिंग मी, दैट्स व्हाई आई हैव एम्प्लॉयड द इंडिकेटर सो दैट इट कैन गिव मी परफेक्ट सिग्नल. मैं अपने डिसीजंस पे और प्राइस एक्शन नॉट गिविंग मी परफेक्ट सिग्नल. आई एम गोइंग टू गेट ट्रैप्ड. मुझे प्राइस एक्शन फेक सिग्नल दे रहा था या मैं उसमें ट्रैप हो रहा था. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द इंडिकेटर सो दैट वो मुझे परफेक्ट सिग्नल दे. हम एंट्री कहाँ करेंगे, एग्जिट कहाँ करेंगे, समवेयर एट अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यहाँ पे हमने एंट्री की. दिस इज द स्टॉप लॉस. हाँ, एक चीज़ और, मैं आपकी स्ट्रैटेजी में अभी एक बार मैं बैकटेस्ट पे जाऊँगा. आई विल गो इनटू द एक्सेल एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि इस स्ट्रैटेजी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है. ठीक है, एंड व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. मतलब सबसे खराब आपके साथ क्या हो सकता है, मतलब जब आपका एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू, मतलब आपकी किस्मत खराब है. दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट आई एम टेकिंग. ठीक है, सो वी बुक अराउंड 70 पॉइंट्स प्रॉफिट है, 7 समथिंग पॉइंट प्रॉफिट है. अब यहाँ पे सेल ट्रेड आता है. वी आर नॉट गोइंग टू टेक द सेल ट्रेड अनलेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे. ओके, सो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू सेल ट्रेड. जस्ट अ मोमेंट.
यहाँ पे हम सेल ट्रेड एंटर करेंगे और हमें छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है अराउंड 21 पॉइंट्स एंड वी विल एग्जिट दिस सेल ट्रेड। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी बुक्ड अराउंड, यहाँ पे हमारा कुछ लॉस हुआ अराउंड 25 पॉइंट्स, देन हमने सेल ट्रेड यहाँ ली 110 पॉइंट्स वी बुक्ड, ठीक है, एंड देन वी बुक्ड अराउंड 65 पॉइंट्स एंड देन वी बुक्ड अराउंड 21 पॉइंट्स ऐसे। अब यहाँ पे सेम सिनेरियो आता है, ठीक है। अब नाउ वी अगेन एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड समवेयर एट अराउंड हियर, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है लॉन्ग ट्रेड वी एंटर, ठीक है, और यहाँ पे भी वी एग्जिट एट अराउंड माइनर 15 to 13 पॉइंट्स का लॉस होता है और हम इसमें एग्जिट कर जाते हैं। अब यहाँ पे सेल ट्रेड आता है, आर वी गोइंग टू टेक दिस सेल ट्रेड हियर? नहीं, अभी हम यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं लेंगे। रीज़न क्या है, इसका लो तो ब्रेक होने दीजिए, ठीक है, लेट द लो गेट ब्रोकन फर्स्ट देन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू सेल ट्रेड। तो हम सेल ट्रेड यहाँ पे एंटर करेंगे, डजंट मैटर हमें लो पे मिल रहा है हाई पे मिल रहा है, वॉट एवर द इंडिकेटर इज सेइंग वी आर गोइंग टू एंटर और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो दिस इज द सिनेरियो, जैसे हम एंटर करेंगे। सो अब स्टॉप लॉस लेट्स से 64 पॉइंट्स हमने अर्न किए, वी हैव लॉस्ट 20 पॉइंट्स हियर, 15 दैट इज अराउंड 33 एंड देन अगेन वी हैव लॉस्ट 30, सो दैट इज 63 पॉइंट्स, मतलब हमारे यहाँ पे नेट क्लियरेंस कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, द डे एंटेड इन कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, सो नाउ वी एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड हियर, ठीक है। हमारा कोई भी स्टॉप लॉस 60 पॉइंट से ऊपर का नहीं होगा, सो हम 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस लगा देंगे मैक्सिमम 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इन फ्यूचर, दिस इज निफ्टी फ्यूचर, दिस इज नॉट ऑप्शंस। अगर 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस फ्यूचर में है देन इन ITM ऑप्शंस हमें 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा एंड द बैकटेस्ट डेटा इज अमेजिंग, मतलब अगर आप एक बार बैकटेस्ट डेटा देखोगे देन यू विल बी हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंट्री की, इसके क्लोज पे पहली कैंडल क्लोज हुई, जब हमने एंट्री की हमारा लॉस कितना रह गया, 9 रुपीज़ ओनली, मतलब डरने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, लॉस अगर लगातार हिट होगा। हम डरते कब है स्ट्रैटेजी से, जब हमारे पास डेटा नहीं होता है, व्हेन वी डोंट नो हाउ द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू परफॉर्म, कहाँ पे हमें वो धोखा दे सकता है, कहाँ पे इंडिकेटर कैन गो साइडवेज, कहाँ पे इट कैन साइडवेज मार्केट, क्योंकि मोस्टली ऑप्शन बायर्स हैव अ फियर, ऑप्शन बायर को यही डर है कि कहीं मार्केट साइडवेज ना हो जाए, और एक बार अगर मार्केट साइडवेज हो गया देन यू माइट लूज। सो ऐसे हमें एंट्रीज लेनी है, दिस इज नाउ द सेल ट्रेड, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और ये यहाँ पे आते आते मॉडिफिकेशन स्टॉप लॉस अराउंड 10 to 15 रुपीज़ हो गया। सो दिस इज द सिनेरियो, यहाँ पे हम बाई ट्रेड लेंगे, इसका हाई ब्रेक होगा जैसे वी गोइंग टू एंटर इनटू बाई ट्रेड एंड अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, लेट्स से यहाँ पे भी एक बार स्टॉप लॉस हिट करा ही लेते हैं, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। सो दिस इज स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे 25 पॉइंट का लॉस फिर से है, निफ्टी फ्यूचर में है ये 25 पॉइंट का लॉस, सॉरी हाँ, समवेयर अराउंड 26 पॉइंट्स का लॉस। ऑप्शंस में इन ATM ऑप्शंस ये लॉस सिर्फ अराउंड 13 या मोस्टली 15 पॉइंट्स का होगा, 15 पॉइंट्स का भी नहीं होगा, 0.5 डेल्टा नहीं होता, तो 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। ओके, सो दैट इज ऑल, बट ITM में इट माइट बी अ लॉस ऑफ अराउंड लेट्स से अराउंड आई वुड से 17 to 80 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉस हुआ लेट्स से फर्स्ट लॉस 9 पॉइंट्स, देन 11, 9 and 11 दैट इज 20 एंड देन वी लॉस्ट अराउंड 26 पॉइंट्स, सो वी लॉस्ट टोटल एट अराउंड 46 पॉइंट्स टिल नाउ इन फ्यूचर्स, मतलब हमने ऑप्शन में सिर्फ 30 पॉइंट्स या मैक्सिमम 30, ठीक है, हमने वी हैव लॉस। लेट्स से अब हम क्या करते हैं, ये स्ट्रैटेजी लेने से आपको डरना नहीं है, अगर सिग्नल मिल रहा है तो डरना नहीं, क्योंकि बैकटेस्ट सेइंग कि डरने की कोई बात ही नहीं है, आई विल टेल यू व्हाई। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा, पहले स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था, ठीक है, एंड सी द मूव, यहाँ पे हमने एग्जिट कर देंगे, 38 पॉइंट्स आए फॉर द डे, कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें डे एंड हो गया, दैट वाज ऑल, ठीक है। सो दिस इज द 15 पॉइंट्स हमारे प्रॉफिट में आए, वी लॉस्ट समवेयर अराउंड 18 पॉइंट्स, सो 3 पॉइंट्स का एसएल हमारा डे फॉर द डे हिट हुआ एंड देन वी अगेन एंटर इनटू दिस ट्रेड और यहाँ पे हमारा समवेयर स्टॉप लॉस हिट्स। हमें डरना नहीं, आई विल शो यू, डू नॉट फियर कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस कैसे मैनेज होगा, अगर हमारा इतना लॉस हो जाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट के साथ कि कितना आपको कैपिटल लेके चलना है, कितनी आपको ट्रेड में कैपिटल रखना है, एंड एवरीथिंग विल बी गाइडेड थोरली, मतलब मैं आपको आराम से गाइड करूँगा, इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो, सो दिस इज द ट्रेड दैट वी गेट। अब हम एक बार चलते हैं बैकटेस्ट डेटा पे, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ ट्रेड। फर्स्टली एक कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बननी चाहिए, लेट्स से दिस टाइप ऑफ कैंडल इज विल नॉट गेट कंसिडर्ड। एक कोई कैंडल अगर रेड सिग्नल आ रहा है तो कैंडल शुड गेट फॉर्म बिलो दैट, ठीक है, या तो ऊपर बने या नीचे बने, उसको ब्रीच करते हुए, दिस कैंडल इज नॉट वैलिड, उसको ब्रीच करते हुए कैंडल ना बने, ठीक है। सो कोई भी सिग्नल आ रहा है, लेट्स से एनी टाइम द सिग्नल इज कमिंग, जैसे यहाँ पे सिग्नल आया एंड देन दिस सिग्नल वाज अ गुड मूव, दिस वाज अ गुड मूव, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक 120 पॉइंट्स, हाई तो उसने दिया 172 का, बट यू एंटर्ड इनटू 120 पॉइंट्स, इतना ही ले लो आप इंटरडे में, दैट इज इनफ। 11:09 से 13:18 तक, दैट इज ऑल। फिर अगेन यहाँ पे सेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो सबने जो लॉस किया होगा, यू एंटर स्टिल इनटू 32 पॉइंट्स प्रॉफिट इन फ्यूचर्स, मतलब 16 से 18 पॉइंट्स इन ऑप्शंस, बाकी इसने 92 पॉइंट्स किया। यहाँ पे आप इतना प्रॉफिट देख रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली एक्सिट, आई नो, ठीक है। यहाँ पे बाई सिग्नल आया, ठीक है, इट वेंट टिल हियर और यहाँ पे डे क्लोज हो गया, यू क्लोज एट अराउंड 40 पॉइंट्स प्रॉफिट। अब हम एक बैकटेस्ट डेटा देख लेते हैं। सो दिस इज द बैकटेस्ट डेटा, ओके। सो गरुड़ स्ट्रैटेजी है, आई विल शो यू दिस। सो ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, एज यू नो 24 पॉइंट्स का प्रॉफिट पहले उसमें प्रॉफिट था, एंड देन आई विल अगेन गो जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। सो आई विल गो टू 3 अक्टूबर, ठीक है। सो दिस वाज सिनेरियो, यहाँ पे 24 पॉइंट्स का लॉस था, देन वी गेन अराउंड 110 पॉइंट्स। ऐसे ही सेम सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई विल ट्राई टू शेयर दिस एक्सेल शीट ऑन द गूगल, यू कैन गो एंड मैच द एक्सेल शीट एज इट इज।
सो अब मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ. सो बुल ट्रेडिंग, 1 मिनट स्कैल्पिंग, रिमूव द ट्रेंड फिल्टर, सुपर ट्रेंड 7202. इसमें यहाँ सब कुछ मेंशन है. डेट है यहाँ पे, ट्रेड से पीएनएल, ये निफ्टी फ्यूचर्स के पीएनएल है. इट इज़ नॉट ऑफ ऑप्शंस. मैक्सिमम पॉइंट फॉर एंट्री, मैक्सिमम पॉइंट फॉर एंट्री क्या कि यहाँ से इतने कितना मूव दिया. मूव तो इसने से अराउंड 150 पॉइंट्स का दिया, बट हमने कितना बुक किया एट 315, दैट इज अराउंड समवेयर एट अराउंड 106 to 109 पॉइंट्स. सो दैट वाज ऑल. हमने इतना ही बुक किया. सो एंड अब हम ऑप्शन पीएल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. आई एम कैलकुलेटिंग ऑप्शन पीएल बेस्ड ऑन 0.4 डेल्टा, कि मैंने कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका 0.5 डेल्टा था, उसकी स्लिपेज विपेज सब कुछ मिला के सो वी एंटेड अप इन 0.4 डेल्टा. सो हमारा -480 रुपीज़ का लॉस हुआ. ठीक है, हमने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था. 20,000 का कैपिटल आपको चाहिए. आई विल एक्सप्लेन यू वाई. 20,000 का कैपिटल आपको चाहिए, देन ओनली यू कैन डू द स्ट्रैटेजी. एंड इसके रिटर्न्स फिनोमिनल हैं. 53 ट्रेड्स आए हैं पूरे अक्टूबर में, अराउंड 56 के आसपास, 52 था, 3 को हम यहाँ पे हैं. 53 ट्रेड्स वर टोटल इन ऑल टुगेदर इन द अक्टूबर मंथ. एंड फ्रॉम 20,000 कैपिटल स्टार्टिंग यू हैव मोर दैन 80% रिटर्न्स आपको आपके कैपिटल पे मिले हैं. दिस इज द 86.7% रिटर्न्स ऑन द कैपिटल. अभी मैं आपको इक्विटी ग्राफ बाद में दिखाऊंगा, सो आई विल शो यू. अब यहाँ पे सिनेरियो आता है, व्हाई आर यू टेकिंग 20,000 कैपिटल. जब हमें एक लेट्स से एक ऑप्शन, आई विल एक्सप्लेन यू, एक ऑप्शन यू विल टेक अराउंड 100 रुपीज़. आपको 100 रुपीज़ का ऑप्शन लेना है, ट्राई टू, ताकि हमें डेल्टा अच्छा मिले. डेल्टा आप सेंसिबल या ऑप्स्टा पे जाके देख सकते हो, ऑप्शन ग्रीक्स में लाइक आपको डेल्टा दिख जाएगा. एंड देन 50, सो दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज़. तो ये 5,000 रुपीज़ बन जाता है. ठीक है, बट आपको इसका 4 टाइम्स अपने अकाउंट में रखना है. मतलब यू हैव टू कीप 20,000 रुपीज़. रीज़न आई विल शो यू वाई. ठीक है, रीज़न यहाँ पे है. दिस इज द ड्रॉडाउन. यहाँ पे लगातार निफ्टी फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस होता है 1 2 3 4 5. इफ़ यू विल सी द सम इट इज -66. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे इसका डबल लॉस होगा. मेरी किस्मत खराब है, इसका डबल लॉस होगा. सो हाउ मच आई एम गोइंग टू लूज इन द निफ्टी फ्यूचर्स. आई एम गोइंग टू लूज 130 पॉइंट्स. 130 पॉइंट्स मीन्स आई एम गोइंग टू लूज लेट्स से अराउंड 70 और 65 पॉइंट्स इन ऑप्शंस. सो इज इक्वल टू 65 into 50. ठीक है, तो 3250 तो मेरा किसी भी टाइम लॉस हो सकता है. मेरा अगर मैं कैपिटल 20,000 से स्टार्टिंग है, तो आई कैन एज्यूम कि मेरी कैपिटल कभी भी 15,000 या 17,000 आ सकती है. सो आई नीड एटलीस्ट 20,000 टू स्टार्ट. अब यहाँ पे पहले ही लॉस हो गया. मतलब होता है ना कि आप कोई नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते हो एंड द फर्स्ट ट्रेड में ही आपको लॉस हो जाता है. सो दिस इज द लॉस दैट यू गेट ऑन द फर्स्ट ट्रेड. ओके, उसके बाद वन यू स्टार्ट गेटिंग द प्रॉफिट, वन यू स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट. यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स भी मेंशन किया है. ठीक है, कभी कभी हमें मैक्सिमम पॉइंट्स इतने हैं और हमने बुक कितना किया 117. जैसे आपने दिखाया आई गेव 170 पॉइंट्स एंड यू बुक ओनली 117. 113 पॉइंट्स ऐसे मैक्सिमम दिया और 50 पॉइंट्स में निकल गए. क्यों? क्योंकि आपका जो TSL था, दिस वाज द TSL, ये काफ़ी ऊपर था. जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी है समवेयर, दिस वाज अ स्ट्रैटेजी. यहाँ पे हम इसलिए बुक नहीं कर पाए, लेट्स से TSL वाज दिस. यहाँ पे तो हमने बुक कर लिया, बट दिस यहाँ पे इट गेव अ मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ लेट्स से दिस अराउंड 68 पॉइंट्स दिया. हमने कितना बुक किया यहाँ पे अराउंड 46 पॉइंट, क्योंकि वी वेटेड. अब यहाँ पे सेम सिनेरियो, इट गेव अ मैक्सिमम ऑफ 178 पॉइंट्स. हमने कितना बुक किया 123 पॉइंट्स. सो इट डिपेंड्स, वो बुकिंग आपके ऊपर है. प्रॉफिट बुकिंग इज इन योर हैंड. आई एम ओनली हियर टू गिव यू गुड एंट्री एंड गुड एग्जिट्स. ओके, सो यहाँ पे हमारा इतना लॉस, ऑप्शंस में हमारा इतना ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा. बट आई एम एज्यूमिंग कि वर्स्ट के सिनेरियो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है. सो आई एम एज्यूमिंग कि हमें 20,000 कैपिटल लेके चलना है. अभी तो वर्स्ट के सिनेरियो की बात करते हैं. वर्स्ट के सिनेरियो मतलब मेरी किस्मत खराब है. दिस इज द वर्स्ट के सिनेरियो. आई विल जूम इन. ओके, हाँ, पहले एक बार इक्विटी कर्व की बात करें. सो गरुड़ में इक्विटी कर्व इज दिस. आप 20,000 से स्टार्ट करते हो एंड देन यू स्टेडली कीप ऑन राइजिंग. इवन तो यहाँ पे लगातार मेरे स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं. अब यहाँ पे आप कहोगे कि मुझे टैक्स भी देना है. सो दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड विद 60 रुपीज़ टैक्स. मतलब जीरोधा में इफ़ यू आर डूइंग इन एनी ब्रोकर, तो 60 रुपीज़ का टैक्स लगता है एक लॉट बाय और सेल करने में. 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज एंड बाकी GST, STT एंड अदर चार्जेस. So this is the total equity curve that you are going to get with the net PNL. यहाँ से 20,000 से start करोगे and it will go till the level of 48,000, somewhere 37,000 sorry. So approximately जो आपका PNL है that is around 17,000 rupees for the entire month and that is phenomenal. But आपको डरना नहीं है यहाँ पे. ठीक है, मतलब आप नहीं डरोगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बस स्ट्रैटेजी देगा. यहाँ 50 पॉइंट्स कैसे हिट हुआ, 20 पॉइंट्स का ऑप्शन में हिट हुआ, क्योंकि 0.4 का डेल्टा है. नहीं डरना है ना, कोई बात नहीं. 1,000 रुपये चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है. हम 20 से स्टार्ट हुए, हम एक पॉइंट पर वापस 21 पे आ गए 22 तक पहुँचने के बाद. नो इश्यूज़. वी हैव टू कीप ऑन ट्रेडिंग. हमें डरना नहीं है एंड वी हैव टू टेक द ट्रेड्स एवरी डे. वी डू नॉट हैव टू मिस. अब हम देखते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, जहाँ पे हमारी किस्मत खराब है एंड मार्केट कैन डू एनीथिंग. इसमें कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे एनी सिमिलैरिटी 30, 22, 32, 20, 28, 48, 100. यहाँ पे आई हैव डबल द लॉस पॉइंट्स. मतलब लॉस पॉइंट्स जो हो रहे हैं वो मैंने डबल कर दिया, बट प्रॉफिट पॉइंट्स को मैंने सेम रखा है. सॉरी, ठीक, प्रॉफिट पॉइंट्स को मैंने सेम रखा है एंड लॉस पॉइंट्स को आई हैव डबल्ड अराउंड 70, 30 एंड 30, 22, 32, 20, 28. ठीक है, सेम केस पर है. 15 को डबल कर दिया, 30 हो गया, 22, 32, 20 और यहाँ पे 50 को डबल करके मैंने 100 कर दिया. बट मैंने प्रॉफिट पॉइंट्स को सेम रखा है. प्रॉफिट पॉइंट्स को मैंने बिल्कुल भी छिड़खानी नहीं किया है.
देन देखते हैं हमारा कैसा स्टॉप लॉस स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सीरीज़ में, मतलब अगर सीरीज़ में हमें लॉसेस होते लगे लगातार 1 2 3 4 5, वी हैव लॉस्ट 132 पॉइंट्स। मैं कहता हूँ मेरी किस्मत ख़राब है, आई विल लूज 260 पॉइंट्स। सो यहाँ पे है 260 पॉइंट्स अगर मैं लूज़ करता हूँ, सो 260 इंटू 50, 13,000 मैं किसी भी पॉइंट पे लूज़ कर सकता हूँ। इफ़ आई एम स्टार्टिंग विद द 20,000 कैपिटल, 7,000 रुपये कैपिटल बचेगी मेरी। फिर क्या आई विल हैव द गट्स और आई विल हैव दैट कॉन्फिडेंस टू डू द ट्रेडिंग? नो। सो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कैपिटल से स्टार्ट करनी है। सो सेफ ट्रेडर्स कैन स्टार्ट विद 30,000 कैपिटल, रिस्की ट्रेडर्स कैन स्टार्ट विद 20,000 कैपिटल। बट ये दोनों सिनेरियोज, दिस इज अ रियल केस सिनेरियो जो कि अभी आपने देखा, दिस इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो व्हेन द स्टॉप लॉसेस आर डबल्ड। पहले तो मैंने स्टॉप लॉसेस को डबल किया, तो जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है उसको भी एक साथ डबल कर दिया है 260। ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन इफ यू विल सी दैट इज अराउंड 132 पॉइंट्स। मैं कह रहा हूँ मुझे 260 पॉइंट्स का लॉस होगा। सो 260 है 13,000। सो आई एम टेकिंग कि मुझे 33,000 लेके चलना है। वाई 33,000? 20,000 वॉज नॉर्मल के सिनेरियो, उसमें मैंने 33,000 ऐड कर दिया। सो अप्रॉक्सीमेटली इफ वी विल स्टार्ट विद 33,000 रुपीज़ एंड देन वी विल एंड अप इन 44,000 रुपीज़। मतलब स्टिल आफ्टर द मंथ हम 11,000 रुपये कमा रहे हैं, अराउंड 11,120 रुपये। टैक्स वैक्स सब आई गेस टैक्स इसमें नहीं डिडक्टेड है, सो टैक्स विल गेट डिडक्टेड। मैं टैक्स डिडक्ट कर देता हूँ, लेट्स से वेट। ओके, सो आई विल ड्रैग इट। हाँ ठीक है। सो फाइनल पीएनएल इज अराउंड लेट्स से 24%। अगर हम टैक्स भी ले रहे हैं तो इफ यू आर टेकिंग कंसिडरिंग द टैक्स दैट इज अराउंड 60 रुपीज़ पर ट्रेड पे टैक्स पड़ रहा है। हर ट्रेड पे वी आर टेकिंग टैक्स ऑफ 60 रुपीज़, देन ऑल्सो वी आर गेनिंग 25% रिटर्न ऑन कैपिटल। अब यही चीज़ अगर 2 लॉट पे होती या 5 लॉट्स पे होती, देन वी वुड हैव मेड अ ट्रेमेंडस प्रॉफिट। मतलब कुछ कोई भी किसी भी हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ये 1 लॉट पे है सारा पीएनएल। ओके, दिस इज द पीएनएल ऑन 1 लॉट। ओके, पीएनएल सॉरी पीएनएल ऑन 1 लॉट, ठीक है। दिस इज ऑल। अगर ये चीज़ लॉट साइज आपका 100 हो जाए देन इट वुड हैव बीन डबल, ठीक है। तो हमें इतना कैपिटल लेके चलना है एंड एक्सपेक्ट दिस कि हमारे 8-10 हज़ार रुपये बनेंगे, बट यू हैव टू कीप ऑन ट्रेडिंग। बेस्ट केस सिनेरियो इज दिस। बेस्ट केस सिनेरियो में आपको मतलब जो नॉर्मल सिनेरियो आया है, दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो एंड दिस इज द मैक्सिमम दैट यू आर गोइंग टू लूज, बट यू हैव टू कीप ऑन ट्रेडिंग। 20,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। 20,000 से एक पॉइंट पे आपके 19,000 जाएंगे, बट आई वुड अज्यूम या आई वुड एडवाइज कि आप 5,000 रुपीज़ बैकअप में रखिए, दैट इज ऑल। इसका डबल हमेशा बैकअप में रखिए। जो भी यहाँ पे लॉस हो रहा है 66 है, यहाँ पे इसका डबल या ट्रिपल आप बैकअप में रखिए। 3250 जो भी यहाँ पे बैकटेस्ट में डेटा में लॉस शो कर रहा है उसका डबल आपको बैकअप में रखना है। सो दिस इज द होल बैकटेस्ट डेटा, दिस इज द इक्विटी कर्व, नेट पीएनएल, दिस इज द क्लियर। मतलब कोई नहीं दिखाएगा आपको यूट्यूब पे कि कितना पैसा चाहिए होता है, किस हिसाब से मैनेज होगा, बैकटेस्ट डेटा क्या कह रहा है। नहीं, पैसा कितना चाहिए ये बताओ, ठीक है। ये नहीं कि 10,000 रुपये से आपकी ऑप्शन बाइंग होगी ना, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यू विल लूज। अगर हम यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से हम कितना रुपये 60 रुपये का 100 रुपये का ऑप्शन लेते हैं, 5,000 7,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं। एवरी वन स्टार्ट। यहाँ पे तो खाली हो गए, अगले दिन ऑप्शन ले नहीं पाए, ठीक है। और अगर लगातार ये लॉस हो जाता है यहाँ पे, दिस लॉस वुड हैव कम अर्लियर, तो वी वुड हैव बीन गॉन, मतलब हमारा केस खत्म हो जाता। अगर इतने लॉस हमें पहले हो जाते हैं 130 पॉइंट्स, तो 130 पॉइंट्स लेट्स से 60 पॉइंट्स, सो 60 इंटू 50 सॉरी इज इक्वल टू 60 इंटू 50। 3,000 रुपये का तो लॉस हमें पहले हो जाता। 7,000 रुपये की तो हमारी कैपिटल थी, 3,000 का लॉस। अगर ये सारे लॉस पहले शुरुआत में हिट हो जाते, हमारी किस्मत ही खराब है, 4,000 रुपये कैपिटल बचता एंड देन वी वुड हैव गॉन होम लाइक अ लूजर, लाइक द 95% जो मार्केट में लूज करते हैं। सो मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब ये आपका ब्रह्मास्त्र है, दिस इज द होली ग्रेल। होली ग्रेल कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, होली ग्रेल इज द मनी मैनेजमेंट दैट विल help you survive the worst consequences या worst scenario. So this is all. तो ये मैं Excel I will share with you and this YouTube video I'll also share on my channel and please watch it. मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको लॉस दे सके। If you will follow the money management, no strategy can enter or get you into a massive loss. मनी मैनेजमेंट हमें फॉलो करना है। So if you like this video, please like, share and subscribe my channel. I will upload more videos. मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। Please, if I'll now the next video will come on Saturday evening क्योंकि I am uploading this on Wednesday night. So next video will come on Saturday evening. I have many more strategies and I am a pure option buyer. So जो जिनके पास कैपिटल है around 50,000 20,000, अगर वो मनी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है, then they will earn good. भैया ये 24% रिटर्न, अगर मैं 30,000 के कैपिटल भी लेके चल रहा हूँ, 24% रिटर्न इज ऑसम, मतलब बेस्ट है। जो बैंक है आपको 2% रिटर्न देता है, मतलब आई वुड से 2% भी नहीं देता है, 0.5% रिटर्न देता है पर मंथ, ठीक है, 0.5 एंड यू आर गेटिंग आफ्टर टैक्स 24% या 25% रिटर्न। अगर मैं टैक्स हटा दूँ देन तो रिटर्न तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, 34% के आसपास, 33% के आसपास है। बट दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ऑन द रियल केस सिनेरियो द रिटर्न इज 86% विद टैक्स। ये विद टैक्स है -60 रुपीज़।
सो प्लीज़ डू द मनी मैनेजमेंट, आप ऐसे मनी मैनेजमेंट करिए। एंड आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी हो दैट यू वांट मी टू टेस्ट, या कोई स्ट्रैटेजी हो या कोई इंडिकेटर हो जिसको आपको लग रहा है कि सही से काम नहीं कर रहा है, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट, जस्ट पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली डू इट। सो दिस वाज ऑल, साइनिंग यू ऑफ फॉर द डे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।